नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल बूथ 1619, वोटरों की संख्या 12,22,190। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत शनिवार को दार्जिलिंग जिले में मतदान होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1619 बूथ है। मतदाताओं की कुल संख्या 12,22,190 है। दार्जिलिंग जिले के समथल इलाके के सिलीगुड़ी विधानसभा में 313 बूथें, माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 390 और फांसीदेवा विधानसभा में बूथों की संख्या 333 है। सिलीगुड़ी विधानसभा में 2,24,886 मतदाता है। इनमें 1,14,349 पुरुष एवं 1,10,531 महिला मतदाता है। माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,83,451 है। पुरुष मतदाता 1,41,376 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1,42,073 है। फांसीदेवा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,38,558 है। 1,20,899 पुरुष और 1,17,557 महिला मतदाता है। इसके अलावा कालिंपोंग में 301 बूथ है। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 2,09,755 है। जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें जा रहा है। अभी कैसा लग रहा है, क्या होगा, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। जाएंगे पोलिंग स्टेशन में और देखेंगे क्या हाल है। अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं है, निश्चिंत है। अभी तो मालूम नहीं चला। अभी तो हम लोग को नहीं मिला। মিললে কি বাদই পতা চলেগা हम लोग के पास মাইক্রো সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি আমি আতঙ্কিত করোনার ব্যাপারে। কারণ যেইভাবে এটা রেট বেড়ে যাচ্ছে সেকেন্ড ওয়েভের পরে, এক এক দিনে 10,000 20,000 করে এফেক্টেড হচ্ছে এবং কিছু কিছু মানুষ মারাও যাচ্ছে। আজকে সকালবেলাও কাগজে দেখলাম বাড়িতে, বা নেট ফেটেও দেখে যাচ্ছি যা র্যাপিড চলছে। সুতরাং সত্যি কথা বলতে এটা অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়, ভয়ঙ্কর আতঙ্কের বিষয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে আতঙ্কিত। ভোটের চেয়ে এই ইলেকশন ডিউটি থেকে অনেক বেশি আতঙ্কিত করোনার ব্যাপারে। আনা উচিত বলে আমি মনে করি। আনা উচিত বলতে এইভাবে না, মানে যেইভাবে অ্যাপিল করেছে বা যাই হোক যেটা বলছে, যেটা ওই কি বাকি 3 দফাটাকে একটা ডেটে করে দেওয়া, আমার মনে হয় এটা খুব একটা শুভ বা মানে এফেক্টিভ হয় বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বেটার এটা হতে পারে এই যে জনসভাগুলো, এই যে প্রচারগুলো, এগুলোকে যদি আমার পড়েছে মাটিগাড়া নকশালবাড়িতে। না, শিলিগুড়িতে তো এমনি নিরাপদই হয় ভোট, আর এখানে আমাদের যথেষ্ট পুলিশ আছে, তারপরে সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, তো আমাদের ভয় নেই। আমি আশা করছি শান্তিতেই ভোটটা সম্পন্ন হবে। এটা দেখুন, এক একটা জায়গায় সেই জায়গার অবস্থা অনুযায়ী এখানে ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আমরা মোটামুটি শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট মোটামুটি শান্ত এলাকা, তো এখানে আশা করছি সেরকম ধরনের ঘটনা মানে আবার হবে না। হ্যাঁ, করোনার জন্য একটু আতঙ্কিত আছি, কারণ এখানেও দেখছেন যে কোনো কিছুই সেরকমভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানা হচ্ছে না, তো সের জন্য একটু আতঙ্কিত আছি বটে। তবুও আশা করছি সব কিছুই আমাদের ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ মাস্ক, তারপরে স্যানিটাইজার এগুলো প্রদান করা হবে। তা আশা করছি সব কিছু সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে মিটে যাবে। আমার 25 মাটিগাড়া নকশালবাড়ি। আমার মনে হয় যতটুকু জানি বা এর আগে যতগুলো ইলেকশন ডিউটি করেছে আমাদের এই 25 বা শিলিগুড়ির মধ্যে, ধরুন এই দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি এরকম কোনো ট্রাবল আমি শুনিনি, এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমি শুনিনি। কারণ আমার 8-10 বার হয়ে গেল ডিউটি, সেই হিসাবে আমি দেখিনি কোনো দিন। তবে এদিকে যেগুলো হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আমাদের শীতলকুচি বলুন বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টগুলোতে বা জায়গাগুলোতে, সেই সবগুলো না হলেই ভালো হতো বলে আমি ব্যক্তিগত ফিল করি। আর উপরওয়ালাকে বলবো যেন আমাদের এদিকে কোনো কিছু না হয়, পরিষ্কার কথা, নাইসলি যেন বাড়ির ছেলে, সবারই বাড়ির বাবা মা ভাই বোন ফ্যামিলি আছে, সবাই যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, এটাই বলবো। আর কি বলবো, डिसिप्लिन के साथ वोट दें। देखिए, जो शीतलकुची का घटना हुआ है वो काफ़ी दुखदायक है। किसी का भी जान जाए हम लोग नहीं चाहते हैं।
और ये जो हुआ है वो तो अब गवर्नमेंट है उसमें देखने वाला, कमीशन है, कमीशन का बात है, ये देखेगा वो। तो ये तो अभी काफ़ी दिनों से मैं वोट कंडक्ट करा रहा हूँ, इसमें जो एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक तो ठीक ठाक रहा है। अभी आगे देखते हैं कि शांतिपूर्ण रहे, कहीं वायलेंस ना हो, क्योंकि जो उत्तर दिनाजपुर में वो लास्ट 2 इयर्स पहले जो हुआ था एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हादसा, इस तरह का कहीं न हो। फुल सिक्योरिटी के साथ हम लोग वोट कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं। আমাদের পড়েছে দেশবন্ধু প্রাইমারি স্কুলে। হ্যাঁ, আশা করি তো শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ পর্ব মানে সম্পন্ন হওয়া উচিত। আমরাও সেভাবেই তৈরি হয়ে আসছি, কোনো রকম মনের মধ্যে এরকম আতঙ্ক নেই। হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তেই আছি। হ্যাঁ, যা শীতলকুচিতে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কোনো এই যে গণতন্ত্র মাধ্যমে যে ভোট অধিকার করে মানুষ, সেটা তো সবার অধিকার আছে, সেখানে যে একটা মৃত্যু ঘটনা ঘটে যায় সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এটা আমাদের যে পঞ্চম দফা ভোট হতে চলেছে সেটা যাতে না হয় সেটাই আশা রাখবো, এবং সেন্ট্রাল কর্মী যেগুলো আছে সেগুলো তো ওনারা দেখবেন ওই ব্যাপারটা যাতে কোনো রকম ঝামেলা না হয় সেটা সেই দিক দিয়ে। सीतलकुची कांड सीआईडी के हवाले मतदान के दिन सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। सीतलकुची फायरिंग मामले की जांच सीआईडी करेगी। शुक्रवार को कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक देवशीष धर ने संवाददाता सम्मेलन कर यहां जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीतलकुची फायरिंग मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दिन कूच बिहार जिले के माथाभंगा के सीतलकुची विधानसभा के 5/126 नंबर बूथ के आमतली एसएस के केंद्र में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे। मृतकों की पहचान हमीदुल मियां, सियामुल मियां, मनिरुल मियां और नूर आलम के रूप में की गई है। घटना को लेकर सीआईएसएफ की ओर से माथाभंगा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में सीआईएसएफ के खिलाफ भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। आखिरकार सीतलकुची कांड की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक देवशीष धर ने कहा कि सीआईडी ने शुक्रवार से जांच शुरू कर दी है। সেটা তো আপনাদের আগেই বলেছি যে একটা কমপ্লেনের ভিত্তিতে সিআইএসএফ এর এগেইনস্টে, মানে সিআইএসএফ শুধু না, ওরা যা যা কমপ্লেন দিয়েছিল সেই অনুযায়ী কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। মেনলি সিআইএসএফ এর বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। আর সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ কি কোনো অভিযোগ করেছে? মানে সেটা তো আগেই করেছে, ঘটনার দিনই কেস হয়েছিল। সিআইডি গতকাল এসেছিলেন, আমরা তাদের তদন্তভার বুঝিয়ে দিয়েছি। কাল থেকে তারা অলরেডি ফিল্ডে সার্ভে করতে শুরু করেছেন, তারা তাদের তদন্ত চালিয়ে দিচ্ছে। দেখুন, এটা আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না। প্রথমত যেখানে লেখাই আছে যে সত্যতা কেউ বিচার করেন, আগে তো মানে ইনভেস্টিগেশনে সেটা হওয়া দরকার। যেহেতু আমরা ইনভেস্টিগেশন অলরেডি সিআইডিকে কালকে হ্যান্ডওভার করে দিয়েছি, তারা সেটা নিয়ে বিচার করবে। अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से बंदूकें मंगाकर की जाती थी तस्करी। 4 7.6 mm पिस्तौल, 20 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन बरामद। कूच बिहार जिले की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कूच बिहार के एसपी देवशीष धर ने शुक्रवार को एक पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि 4 7.6 mm पिस्तौल, 20 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कूच बिहार कोतवाली पुलिस को इस महीने की 13 तारीख को कूच बिहार मिनी बस स्टैंड से अवैध हथियार के साथ दिनहाटा निवासी मीठू हुसैन को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर दिनहाटा निवासी मोनिरुल इस्लाम और उनके साथी महमूद हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी ने इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि मोमिनुल इन अवैध हथियारों को बिहार से बेगूसराय से मंगाता था और मीठू हुसैन इन हथियारों की सप्लाई में कैरियर का काम करता था। 5,000 रुपये के एवज में मीठू हुसैन इन हथियारों को मोनिरुल इस्लाम के गुप्त ठिकाने में पहुंचा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। রিমান্ড পিরিয়ডে সে আছে, আমাদের জেরা চলছে। আমরা মনিরুল ইসলামের যে ক্রিমিনাল অ্যান্টিসিডেন্ট দেখেছি সেই ধরনের কাজ করতো। আগেও যেটা বললাম যে বেগুসরাই থেকে মেনলি এদের অস্ত্রশস্ত্র আসতো, এবং যেহেতু আমরা এটা ইন্টারোগেশনটা এখন ইনভেস্টিগেশন করছি এবং এর ইন্টারোগেশন চলছে কাস্টডি পিরিয়ডে, এই মুহূর্তে এর থেকে বলা কিছু সম্ভব নয়। তবে আমরা এটা বলতে পারি এ ধরনের আগে অনেক কাজ করেছে, এবং যতটা আমরা খবর পাচ্ছি এ ধরনের পুরো জিনিসের সাথে আর্মসগুলো রিকভারি হয়েছে কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ড থেকে।
रायगंज के पिरोजपुर में स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय में लगाई गई आग, बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर आरोप, किया पथ अवरोध। रायगंज विधानसभा केंद्र के कमलाबाड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत पिरोजपुर भाजपा कार्यालय में गुरुवार रात आग लगा दी गई है, जिससे कार्यालय जलकर खाक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले धमकी दी गई थी कि इस इलाके में सभी कार्यालयों को आग लगा दिया जाएगा और आखिरकार उन्होंने आग लगा ही दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में काफी तनाव और उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। भाजपा ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग में आज पिरोजपुर इलाके में पथ अवरोध किया। सूचना मिलते ही करणझोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी में चल रहे अंदरूनी कलह का यह नतीजा है, जिसके कारण कार्यालय में आग लगाई गई। इसमें टीएमसी का कोई हाथ नहीं है। এখানে আমি ভোর 6টার সময় আমার এখানকার যে বুথ সভাপতি অমল বর্মন বা এইখানকার যে লোকাল কার্যকর্তাগণ আমাকে ফোন করলো যে আমাদের এই 167 নম্বর বুথের কার্যালয় যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে কে, তোমরা কি দেখেছো? বলে না, রাত্রিবেলায় ঘটনা আমরা দেখিনি, কিন্তু ভোরবেলায় উঠে লোকজন আমাদেরকে ফোন করলো যে এই ব্যাপার, এই কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এবং কি আমাদের প্রত্যেকটা এখানকার যে নেতৃবৃন্দ গ্রামবাসীদের কথা যে এই পার্টি অফিস কালকেও নাকি আমাদের এই বুথ সভাপতি কার্যকর্তাদের হুমকি ধুমকি দিয়েছে, হ্যাঁ, চমকাইছে যে তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না। হ্যাঁ, সেটা আমার বুথ সভাপতি বলবে না। আমি শুনতে পেলাম সকালে। দেখুন, এখানে তৃণমূলের কোনো হাত নেই, এটা বিজেপির নিজস্ব কোন্দল। কেন রিসেন্ট দেখছেন আপনারা যে ওনাদের যে জেলা প্রেসিডেন্ট তাকে সরিয়ে দিয়েছে, সরিয়ে দেওয়ার পরে নিজেদের মধ্যে একটা যে সংঘর্ষ সেটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে চলে আসছে। এটা তারই প্রতিফল। এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও বেশি বাড়বে। আর তার দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা পাড়ায় প্রত্যেকটা মহলে একই ছবি। শান্তিপূর্ণ মনে হয় হবে না, আমাদের ভোট পিসফুলিও হবে। মানুষ একদম রেডি আছে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য। আর যা হচ্ছে এটা বিজেপির নিজস্ব ব্যাপার, এখানে তৃণমূলের কোনো হাত নেই। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी जिले में 2 DCRC केंद्रों से बूथों की ओर रवाना हो रहे चुनाव कर्मी। जलपाईगुड़ी जिले में चुनाव के लिए 2 DCRC केंद्र बनाए गए हैं। उनमें से एक माल बाजार के परिमल मित्र कॉलेज में है और दूसरा जलपाईगुड़ी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है। जलपाईगुड़ी सदर, डाबग्राम, फूलबारी, राजगंज, मैनागुड़ी और धूपगुड़ी विधानसभा केंद्र के चुनाव कर्मी शुक्रवार सुबह से यहां जमा होने शुरू कर दिया। यहां से वे EVM समेत अन्य चुनाव सामग्रियों के साथ अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव कार्यों को लेकर जलपाईगुड़ी में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है। कोरोना के कहर के कारण दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार समेत देश के सभी 3693 स्मारक 15 मई तक किए गए बंद। कोरोना के बिगड़ रहे हालात को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने तहत आने वाले देश के सभी स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी है। सभी स्मारक 1 माह तक बंद रहेंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार देर शाम ASI के निदेशक NK पाठक ने आदेश जारी कर दिए। इसमें इन आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की बात कही गई है। इससे पहले लॉकडाउन लगने पर मार्च 2020 के अंत से देश के सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे। इसके बाद पर्यटकों की संख्या सीमित कर 6 जुलाई को टिकट वाले सभी स्मारकों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। कोरोना के मामले कम होने पर 19 दिसंबर को पर्यटकों की संख्या से कैंपिंग हटा ली गई थी। वृद्ध दंपत्ति का फंदे से लटकता शव बरामद। सिलीगुड़ी नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के नंदीग्राम इलाके में एक वृद्ध दंपत्ति का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की पहचान सुशील बर्मन और नागिन बर्मन के रूप में की गई है। बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह स्थानीय एक महिला इलाके में टहल रही थी, तभी उसने इलाके में एक बुजुर्ग को पेड़ से लटकते देखा। धीरे धीरे आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। खबर मिलते ही एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार मृत दंपत्ति का घर घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। दोनों अलग अलग रहते थे। स्थानीय लोगों ने पारिवारिक समस्या के कारण बृहद दंपत्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি এদিকে হাঁটতে আসতেছি তো এখানে একটা বুড়ি ছিল, বুড়িটা কইতেছে ওই দেখ। আমি পরে দেখলাম আমি পুতুল নাকি তারপর শেষে কই মা বুড়া বুড়ি এটা কি, আমি একটা ওদিক দিয়ে হাঁটা দিয়ে গেছি গিয়া একটা ছেলেটাকে উঠাইছি, তারপরে এই ঠারপুরে গিয়ে উঠাইছি, সবাই রে পরে ঠারপুরটাকে উঠাইছি। আমি তো চোখে কম দেখি, বুঝতে পারি নাই ওরা যে এরা এইসব বুঝছে যে হ্যাঁ উনি।
रायगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजीव बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। रायगंज विधानसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी के समर्थन में रायगंज विधानसभा केंद्र के 10 नंबर वार्ड मडाईकुड़ा ग्राम पंचायत इलाके में एक चुनाव प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। सभा में उम्मीदवार कल्याणी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजीव बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से राजीव बनर्जी ने भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव के टीएमसी को दोषी ठहराया और कहा कि इन चुनाव में निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ मूठ का बैंडेज बांधकर चुनाव प्रचार कर रही है। यह सहानुभूति बटोरने का एक हथकंडा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्होंने 100 काम किया है, जबकि कोई भी व्यक्ति 100% काम कभी नहीं कर सकता। वह झूठ बोलती है। इस बार तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। आज के राज्येर उन्नयने मानुष की চেয়েছিলেন, आज के আমরা তো তার প্রতিবাদ করেছিলাম। 5.5 লক্ষের উপরে ভেবে রাখুন, 5.5 লক্ষের উপরে স্থায়ী শূন্য পদ চাকরি দিতে পারিনি আমরা। 10 বছর রাজত্ব করেছি, আরো শূন্য পদ তৈরি করা যেত, বেকার যুবক যুবতীর মুখে হাসি ফোটানো যেত, কিন্তু আজকে এই তৃণমূল কংগ্রেস সেই কাজ করতে পারেনি। আজকে বলুন তো, মা বোনেদের নিরাপত্তা আছে? প্রশাসন এখানে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়। আমরা একটা সময় গর্ব করে বলতাম যে বামপন্থীরা 2 লক্ষ কোটি টাকা দেনা করে আমাদেরকে দিয়ে গেছে, এই সরকারকে নিলামে চড়ালেও কেউ নিত না। আর আজকে দুঃখ লাগে যে এই তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী 10 বছরে 34 বছরে 2 লক্ষ কোটি দেনা করেছে বামপন্থীরা, আর তৃণমূল কংগ্রেস 10 বছরে 2 লক্ষকে 5 লক্ষ কোটিতে নিয়ে চলে গেছে। এক একজনের মাথায় 50,000 টাকার উপরে দেনা। দেনা সুদবে কি করে? আজকে সাধারণ মানুষের মাথায় দেনা সুদতে পারত। অন্য রাজ্য যেভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখে নিজের রাজ্যের উন্নয়ন করে, আর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে শুধু ঝগড়া করতে জানে। ঝগড়া করে করে আজকে রাজ্যের মানুষ আজকে বঞ্চিত হলো। তাই আজকে সময় এসছে আপনাদের ভাবার, কি করবেন আজকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জেনে রেখে দিন, এই নির্বাচনটা আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনটাকে যদি নিছক আপনি একটা পৌরসভার নির্বাচন ভাবেন, এই নির্বাচনটাকে যদি আপনি একটা পঞ্চায়েতের নির্বাচন ভাবেন, যদি এই নির্বাচনটাকে একটা সামান্য নির্বাচন ভাবেন, তাহলে আপনি ভুল করবেন। কারণ এই নির্বাচন এমন একটা নির্বাচন, এই নির্বাচন ঠিক করবে आगामी दिने रायगंजे उन्नयन होबे की होबे ना। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।